after elimination reaction, there is another one reaction, that is reaction with active metals. Okay, here student, जो हलाइड्स होते हैं या फिर अल्किल हलाइड्स जो है, उनकी रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ में होने के बाद क्या फॉर्म होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये हम इस रिएक्शन में पढ़ेंगे. ओके, दिस इज रिएक्शन अबाउट द एक्टिव metals. Active metals like sodium, magnesium, cadmium readily combine with alkyl chloride, bromide and iodide to form compounds containing carbon metal bond. These are known to be organometallic compounds. Here student, this words organometallic compounds means what? जहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो या फिर एक कार्बन किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, मेटल्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म करता है, एंड दैट इज नोन टू बी अ ऑर्गेनो. ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक मीन्स मेटल. इन दोनों के साथ में जो बॉन्ड फॉर्मिंग होता है, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज नोन टू बी organometallic compounds. And we know about that the alkyl halides means it's a chloride, bromide or iodide readily undergo the reaction with active metals such as sodium, magnesium, cadmium. Okay, first of all we see the reaction with magnesium. There are two reactions of active metals. Okay, first one is reaction with magnesium and second one is Wurtz reaction. Firstly we are studying about the reaction with magnesium. So let us see what is the reaction with magnesium. Okay, when alkyl halide is treated with magnesium in the dry ether, here is the dry ether is what? Dry ether is catalyst. Okay, as a solvent it gives alkyl magnesium halide. It is known as Grignard reagent. First of all, when we study about the Grignard reagent, we have to understand that here is the involvement of magnesium. Okay, so ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसमें क्या होता है, मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको हम. तो रिएक्शन जो होती है मैग्नीशियम के साथ में अल्किल हलाइड की, सो हियर इज what are the essential part? It have alkyl halide have been treated with the magnesium in the dry ether as a solvent. Okay, this is the reaction. Here is the alkyl halide which is treated with magnesium in the presence of what? ड्राई ईथर. ड्राई ईथर के प्रेजेंस में अल्किल हलाइड को ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ में? मैग्नीशियम के साथ में. एंड दिस कैन फॉर्म दिस प्रोडक्ट. दिस इज नेम्ड एज अल्किल मैग्नीशियम हलाइड. ओके, जो अल्किल हलाइड है वो किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करना है, एंड इट कैन फॉर्म अल्किल मैग्नीशियम हलाइड एंड इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, उसके साथ साथ ये रिएक्शन जो है वो क्या, कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रही है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर रही है. Okay, now Grignard reagent are very reactive compound. They react with water or compounds containing hydrogen attached to the electronegative elements. Okay, here are some examples of this Grignard reagent. In this reaction we are using this Grignard reagent which is treated with alcohol, means methanol. Okay, in this reaction what happens here? यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन
इसके साथ अटैच हो रहा है, दिस कैन फॉर्म द बॉन्ड विथ कार्बन एटम and can form hydrocarbon, and the remaining part undergoes the reaction with this part. Okay, here OCH3 is attached with magnesium and here is one of the halide. Okay, in the next reaction what happens here? Again one of the Grignard reagent react with ammonia and again here hydrocarbon is formed. Okay, so Grignard reagent is also essential to form hydrocarbons. Okay, here student we have to note down that Grignard reagents are very reactive compound and they are very useful for formation of hydrocarbons. Okay, they are react with water and compounds containing hydrogen attached to the electronegative atoms or elements. Okay, this is all about the reaction with active metals. Okay, रिएक्शन किसके साथ में हो रही है? अल्किल हलाइड्स के साथ में किसकी? एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन हो रही है. दिस कैन फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, that is alkyl magnesium halide. Okay, this is the alkyl magnesium halide and this is also known as Grignard reagent. So student, this is very important reaction. Okay, always remember what is the Grignard reagent. So the next reaction is Wurz reaction. Okay, this is the Wurz reaction. Alkyl halide react with metallic sodium in dry ether as a solvent and form higher alkanes containing double number of carbon atom present in alkyl halide. This reaction is called as Wurz reaction. Okay, वुर्ज रिएक्शन जो है हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है, लेकिन हमको यहाँ पर अल्किल हलाइड के रेफरेंस में यहाँ पर उसको पढ़ना है. ओके, हियर अल्किल हलाइड जो है वो मेटेलिक सोडियम के साथ में रिएक्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. सो लेट अस सी द रिएक्शन. दिस इज द रिएक्शन. Here alkyl halide is react with the sodium in presence of what? Dry ether and can form what? Higher alkanes RR. ओके, यहाँ पे हमको डबल आर दिख रहा है, मीन्स ये हायर अल्केन्स जो है वो फॉर्म कर रहा है और साथ में सोडियम हलाइड एज अ बाय प्रोडक्ट जो है उसको रिमूव कर रहा है. सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी को लेना चाहे तो यहाँ पर क्या लिया हुआ है? इथिल ब्रोमाइड लिया हुआ है. इथिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड कैन फॉर्म द ब्यूटेन. अब ये ब्यूटेन कैसा फॉर्म कर रहा है? इथिल ब्रोमाइड हमने लिया है, ब्रोमाइड तो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा? सोडियम के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके 2NaBr फॉर्म कर रहा है. लेकिन ये जो इथिल है ये दो इथीन है, ये दो इथीन है और ये दो इथीन है, वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? ब्यूटेन फॉर्म कर रहे हैं. मीन्स इन द वुर्ज रिएक्शन हायर अल्केन इज फॉर्मिंग हियर. क्या फॉर्म करता है वुर्ज रिएक्शन में? क्या होता है? वुर्ज रिएक्शन इन विच अल्किल हलाइड रिएक्ट विथ व्हाट? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ड्राई ईथर. और ये फॉर्म क्या करते हैं? हायर अल्केन्स जो है वो फॉर्म करते हैं. एंड स्टूडेंट, नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच आर आस्क इन द योर एग्जामिनेशन, इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, स्टडी करो. उसके साथ में दिस इज़ द जनरल रिएक्शन and this is the example. You have to write down both of these, general reaction with the example. And always remember, जब भी हम कोई एग्जाम्पल देते हैं किसी भी रिएक्शन का
सो वहाँ पर हमको क्या ध्यान में रखना है, उसका नाम भी वहाँ पे हमको ऑलवेज लिखना चाहिए। जो कंपाउंड हम ले रहे हैं उसका आप नाम लिखो। बाद में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नेमिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शंस के साथ में नेमिंग भी उसका करना चाहिए। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट अल्किल हैलाइड इज यूज्ड, all the three possibilities of alkane are formed। जब हम मिक्सचर दो अलग अलग अल्कील हैलाइड्स का ले रहे हैं तो ऐसे वक्त में क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं और इथिल ब्रोमाइड भी ले रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या होगा, अगर ये हम टू डिफरेंट अल्किल हैलाइड अगर यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, यहाँ पर क्या क्या फॉर्म हो सकता है। इथेन भी फॉर्म हो सकता है, प्रोपेन फॉर्म हो सकता है और ब्यूटेन। दिस थ्री compounds are formed by this reaction. So first of all I must say this Wurtz reaction is very important reaction, and you have to note down about this reaction, that is it can happen in presence of sodium metal with dry ether. Again you have to note down about that it can make higher alkenes। जब हमको हायर अल्कील हैलाइड्स जब हायर अल्केन्स जब हमको फॉर्म करना पड़ता है या फिर फॉर्म करना है, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, वुर्त्ज़ रिएक्शन को फॉलो करते हैं, एंड वुर्त्ज़ रिएक्शन कैन फॉर्म हायर अल्केन्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। सो हमने दो रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ में स्टडी किया है, जो कि फर्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज वुर्त्ज़ रिएक्शन। बोथ ऑफ द रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, सो दोनों भी रिएक्शन में एक सिमिलैरिटी ये है कि दोनों भी रिएक्शन जो है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, या फिर मैग्नीशियम जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव मेटल है, और वुर्त्ज़ रिएक्शन में जो है सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर वुर्त्ज़ रिएक्शन में ये याद रखना है कि हमको सोडियम को याद रखना है। वुर्त्ज़ को क्या पसंद है, सोडियम मेटल पसंद है, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वुर्त्ज़ रिएक्शन में Na या फिर सोडियम इम्पॉर्टेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, उसमें मैग्नीशियम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। यहाँ पर हमारा जो अल्किल हैलाइड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है विद द रिएक्शन विथ SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स, और नेक्स्ट वन लेक्चर में हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।